Srila Prabhupada will be very pleased to see how well you're organizing your Rathi Yatra here tonight. श्रीला प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्न होंगे ये देख के कि आप कितनी अच्छी तरीके से आज यहाँ ये रथ यात्रा कार्यक्रम आयोजन कर रहे हो। Srila Prabhupada as a young child, he liked to do Rathi Yatra when he was only a few years old. श्रीला प्रभुपाद जी जब छोटे बालक थे उसी समय से वो रथ यात्रा किया करते थे। उनके पिताजी उचित नहीं करते थे छोटी उम्र में ही रथ यात्रा करने के लिए। So when he went to the Western world, he was very happy to see Lord Jagannath appear to the devotees there, and they began to have Rath Yatra festival. तो जब श्रीला प्रभुपाद जी पाश्चात्य देश गए वो बहुत खुश थे कि वहाँ जगन्नाथ प्रकट हुए हैं भक्तों के बीच में और वहाँ रथ यात्रा कार्यक्रम करने के लिए। Rath Yatra was very much loved by Lord Chaitanya Mahaprabhu. 500 years ago, he would take part in the Rath Yatra every year. चैतन्य महाप्रभु भी रथ यात्रा को बहुत पसंद करते थे और 500 वर्ष पहले हर वर्ष वो रथ यात्रा कार्यक्रम में भाग लेते थे। This Rath Yatra festival is actually began in Kurukshetra. Very first Rath Yatra took place at Kurukshetra. रथ यात्रा महोत्सव की शुरुआत हुई थी कुरुक्षेत्र में। पहली रथ यात्रा कुरुक्षेत्र में हुई थी। Generally, Kurukshetra is famous for the speaking of Bhagavad Gita, but it's also famous for Rath Yatra. आमतौर पर हम सोचते हैं कुरुक्षेत्र प्रसिद्ध है क्योंकि वहाँ भगवद गीता बोली गई थी, परंतु रथ यात्रा भी कुरुक्षेत्र से शुरू हुई। Lord Krishna has been living in Dwarka, and he got news there's going to be an eclipse. So Lord Krishna decided he would go to Kurukshetra and do rituals there in Kurukshetra, overcome the inauspicious night. भगवान श्री कृष्ण जब द्वारका में रहते थे उनको सूचना मिली कि ग्रहण होने वाला है, तो उन्होंने निर्णय किया कि वो कुरुक्षेत्र जाके तब वहाँ ग्रहण के समय जो विमान और कार्य करते हैं वो करेंगे ताकि ग्रहण का अशुभ प्रभाव न पड़े। At that time, Lord Krishna came to Dwarka along with all of his wives. He came in the company of many great cities. But he also sent a message to Vrindavan. And he asked all the devotees to come from Vrindavan and meet him. उस समय भगवान श्री कृष्ण ने सब पत्नियों के साथ और साधुओं के साथ कुरुक्षेत्र के लिए प्रस्थान करने लगे और उन्होंने वृंदावन में भी गोपियों को सूचना दी कि वो कुरुक्षेत्र आएंगे और गोपियां वहां अपनी उनसे मिल सकती हैं। Lord Krishna usually gives the devotees in Vrindavan, but it's a very special event. It's going to be the eclipse. So Lord Krishna and the devotees, and they could also come there to Kurukshetra, then they could be together after many, many years. पहले कृष्ण गोपियों से वृंदावन धाम में मिला करते थे, लेकिन अब जब ये ग्रहण का अवसर आया उन्होंने गोपियों को सूचना दी कि वो कृष्ण से कुरुक्षेत्र में आके मिले ताकि इस प्रकार कहीं कहीं वर्षों के छात्रियों का मिलन हो सके। They were all excited, the devotees were all looking forward to seeing Lord Krishna after a long time. तो सब गोपियां बहुत खुश थी कि बहुत लंबे समय के बाद भगवान कृष्ण को देख सकेंगी। And Lord Krishna came
And when they saw Lord Krishna and Kurukshetra, it became just a surprise for them. Because Lord Krishna, now he was a prince, now he was a Dwarka. But before, they didn't call Krishna as an outward boy. तो अब जब उन्होंने कुरुक्षेत्र में कृष्ण को देखा तो इनके लिए आश्चर्य का दृश्य हुआ कि कुरुक्षेत्र में कृष्ण राजा के तरह नहीं गए लेकिन वे मेरे वृंदावन में एक ग्वालियर की तरह चल रही थी Conquered by Krishna Bhagavati got fed in his hair, and he played a flute because he knew that she was involved the cows. So the gopis they always knew Krishna in this way. तो वृंदावन में 24 कृष्ण ग्वालियर थे तो वो मोर पंख पहनते थे और बांसुरी बजाते थे क्योंकि बांसुरी से भजन को बुलाया जाता था गोपियां कृष्ण को इस वेश में जानती थी But now Krishna has come, and he's a very different man. He's married, he's got so many wives, and he's dressed in silk and brown, with gold rings. They go meet or they saw Krishna. It was like a change for them. और गोपियां कृष्ण को ग्वालियर की तरह जानती थी लेकिन जब उनको अपने कुरुक्षेत्र में ले गए हैं तो द्वारका से आए हैं उनकी पत्नियां हैं उनकी सेना है जो राजा है तो गोपियों को कृष्ण बहुत अलग लगे Gopis said, this Kurukshetra also very different from Vrindavan. In Kurukshetra, it was very noisy. There were many military there. There was a rumbling of chariots, and there were elephants moving around. So many soldiers. It was not like Vrindavan. गोपियों को कुरुक्षेत्र स्थान के वृंदावन से अलग लगा वहां बड़े बड़े महल थे रथ थे हाथी चल रहे थे सेनाएं चल रही थी तो ये कुरुक्षेत्र का दृश्य वृंदावन से बहुत अलग था Vrindavan is in Yamuna It's over the hill. There's some peacocks, the parrots, and the very different body. वृंदावन में यमुना पार है गोवर्धन पर्वत है मोर है पक्षी है तोते हैं बहुत अलग अलग है कुरुक्षेत्र से Nobody thought that we're going to bring Krishna back to Vrindavan. We don't want Krishna here in Kurukshetra. We're going to take him back to Vrindavan. गोपियां कहने लगी नहीं हम कृष्ण को यहाँ नहीं चाहते कृष्ण को वापस वृंदावन ले चलेंगे हम उन्हें वापस वृंदावन ले आएंगे And Moses made a chariot. They put Krishna on the chariot and they brought him back to Vrindavan. This was the first Bhakti Ghat. और इस प्रकार से गोपियों ने कृष्ण को रथ पे बिठाया और रथ द्वारा उन्हें वापस वृंदावन ले आए ये थी पहली यात्रा Lord Chaitanya appeared to Maharaj Indra. Maharaj Indra desired so much to be the form of the Lord. भगवान जगन्नाथ ने प्राकट्य हुआ था महाराज इंद्रदेव के लिए महाराज इंद्रदेव बहुत उत्सुक थे भगवान का रूप देखने के लिए The Lord appeared. It was a day Vishwakarma was set up the form of Lord Chaitanya. But he has no condition to serve me. If I don't be, let me part of the form of the Lord. And I finish and I will give it to you. विश्वकर्मा को एक कार्य दिया गया था कि लकड़े से भगवान का रूप बनाए परंतु विश्वकर्मा ने शर्त रखी थी कि जब तक भगवान का रूप बनाना होगा कोई बीच में नहीं आएगा Vishwakarma was working for many days in private. Maharaj Indra was waiting anxiously outside. But after some days he could not hear anyone going on. And he became anxious and he came to the विश्वकर्मा एक कमरे में भगवान का रूप बना रहे थे लकड़े से और काफी दिनों तक वो बना रहे थे तो आवाज आ रही थी
परंतु एक दिन ऐसा हुआ कि अंदर काम होने की कोई आवाज नहीं आई, तो महाराज इंद्र उत्तर सपना में आ गए कि अंदर क्या हो रहा है और कमरे में प्रवेश किए देखने के लिए। And the servants entered the door open, and then the room, Vishwakarma disappeared. And then Maharaj said, I saw the form of the Lord, but he had no arms, no legs. So Maharaj did not feel very bad. But oh no, the form of the Lord is not holy. ऐसे ही महाराज इंद्र का दरवाजा खोले कमरे में जाने के लिए विश्वकर्मा गायब हो चुके थे और उन्होंने वहां आधा सुधरा रूप देखा भगवान का, इसके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, और उन्हें बहुत बुरा लगा और शर्मिंदगी हुई कि अरे ये क्या हो गया, भगवान का आधा रूप बदल है। But then a voice from heaven, a voice from God spoke that no, this is the Lord, the Lord wants to be worshipped. तो ये देखकर महाराज इंद्र को बहुत बुरा लग रहा था, बहुत शर्मिंदगी हो रही थी, परंतु जब वो ऐसा सोच रहे थे तो ऊपर से आवाज नहीं, उसने कहा नहीं नहीं, आप ऐसा मत सोचिए, रूप में जिसमें भगवान प्रकट होना चाहते हैं। This is the form of the Lord in ecstasy. This is the form the Lord revealed when he was standing above his Vrindavan. तो वहां पे कहा गया ये भगवान का रूप है पूर्ण आनंद में, ये भगवान का रूप है जो प्रकट होता है जब भगवान अपनी वृंदावन की लीला सुन रहे हैं। It happened when the Lord was living in Dwarka. Many of the devotees were there in Dwarka, and they had the opportunity to know anything about Vrindavan. But they knew Krishna had lived his childhood in Vrindavan. So they wanted very much to hear about the Lord's pastimes in Vrindavan. So they asked Rohini, was the mother of Lord Rama, that the Rohini, she was the only one who would be there in Vrindavan and see all the pastimes of the Lord in Vrindavan. So they asked her, is that the only thing? द्वारका में ऐसा हुआ था कि वहां के लोग भक्त थे, उन्होंने भगवान की बाल्य लीलाएं जो वृंदावन में हुई थी उनको नहीं सुना था, तो उन्होंने रोहिणी माता को ये भगवान की बाल्य लीलाएं सुनाने के लिए कहा। जो बलराम की माता है, क्योंकि वे इस समय वृंदावन में थी और उनको ये बाल लीलाएं भगवान की पता थी। So the Rohini said, all right, I will do it, but we must be careful. When the Krishna is here, if he hears, it will be very painful for him. और रोहिणी ने कहा, ठीक है, मैं आपको ये लीलाएं बताऊंगी, लेकिन सावधान रहना कि कृष्ण ये लीलाएं नहीं सुने, क्योंकि अगर वे सुनेंगे तो उनके लिए बहुत दर्दनाक होगा। So Rohini and there is a big hall and there are guards, and they had Rohini speak, and everybody was listening. And then Rohini speak about it. Wonderful. So they were hearing Rohini speak, and then they had the eyes beginning bigger and bigger, and their arms and the legs shrank into the body. लोग ये लीलाएं सुन रहे थे माँ रोहिणी के मुख से,
तो उनके आंखें बड़ी बड़ी होने लगी और उनके हाथ और पैर शरीर के अंदर घुसने लगे। तो जब हम भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का रूप देखते हैं, हमको ये समझना चाहिए कि उनके हाथ और पैर शरीर में अंदर घुस हुए हैं और उनकी आंखें बड़ी हैं और वो आनंद का अनुभव कर रहे हैं अपनी वृंदावन की लीलाएं सुनकर। satisfied in that is a lot of separation and a lot of worship in this form. तो महाराज इंद्र दोनों को संतान मिली सुन के कि भगवान की लीला थी कि वो इस रूप में प्रकट हुए हैं और वही चाहते हैं इस रूप में उनकी उपासना हो। And the Navratri Ashram Festival is done bringing the word कृष्ण का घर वृंदावन है, कृष्ण का हृदय दूसरा वृंदावन में है। तो हम लोग इसको तो चाहेंगे ठीक रहे हैं, ये मनोभाव लाजी है। हम कृष्ण को वापस वृंदावन ले जा रहे हैं, वापस घर ले जा रहे हैं। That everyone will follow. If in some way the Lord takes and take back. और लड़कियों का महोत्सव बहुत ही अद्भुत महोत्सव हम देख रहे हैं। आज कितने वक्त के हम भाग ले रहे हैं और हम कार्यक्रम के अनुसार रथ खींचना शुरू करेंगे। महोत्सव के अंदर हम इस और थोड़ी देर में हम लोग भक्ति करेंगे। जब आगे लेकिन मेरी विनती है कि हमारे सकल जो भी उसी हिसाब से हम 10 को आगे बढ़ेंगे।